Salutation to the God, Abhivadan Paramatma. According Indian language, Abhivadan Paramatma. Paramatma Abhivadan, according Nepali language. Salutation to the God, according English. To know about God, uh, four level education, four level education from spiritual books, from all spiritual books of the world, from four level we can know about the God. According to Sanskrit, God means Paramatma. God means Paramatma. Paramatma is a supreme position. Paramatma, God, is a supreme position. And after that, first position according to Sanskrit, Satto level. And second level, Raja level, Rajagun level. And third level, Tama level, Tamagun level. The Sanskrit word, Paramatma, Satto, Raja, Tama. Four levels. The education of God from the spiritual books of the world, mainly Vedas, mainly Vedanta philosophy, concept philosophy. The main philosophy, Vedanta philosophy means the topmost philosophy of the world. From this point of view, four levels, the education about God. God means Paramatma. Supreme level, topmost level. Here we can find the position of Sri Ram, the position of Sri Krishna, position of Shiva, position of Vishnu Bhagavan, from this level. The ancient teacher of the world, Ved Vyas, and modern world teacher, Chitisha, level, we get supreme level. From there, our salvation can be. We can get salvation from the level of supreme level. That is God's level. And that's below, that's under Satto. Satto level, the God and Goddess, level of God and Goddess, Satto Gun. After that, Raja level, and the fourth, Tama level. Tama level, Raja level, Satto level, Paramatma level. And from the level of
God's point of view, Paramatma level, Sattva level, Raja level, Tama level. Or we can say Tama Guna, Raja Guna, Sattva Guna, Gunatit. Gunatit. All three disappears upon the God, upon supreme level, that is Shiva, that is Ram, Sri Krishna. Now, means according to date, New Year 2025, first month, January 26th, today is Sunday, according Hinduism, Maha Krishna Paksha Dwadashi Tithi, today Ravivar, Aditya Var, and according Nepali Bikram Sambat 2081, month, Mahina, Magh, 13 gate, 13 gate, Aitavar. Today presenting this from Nepal country, from Nepal Bhairava city, Parasi city, Palpatansan city, Butol city. And this presenting by President of Immortal Presence Center, according to Nepali Akhanda Sukha Kendra, about the level, to know the education, good education, true education, 4 levels, God level, and Sattva level, Raja level, Tama level. And our immortal rest, we can get according supreme level. So first we should remove Tamagun, having Rajagun. After that we should remove Rajagun, having Sattvagun, and being a supreme level, that is actually God. The Sattvagun also goes into the supreme level, and at last remains only one, that is Supreme God, Pashupatinath. At last we get Pashupatinath, that means Shiva. That means our immortal nature, that is pure consciousness, always pure consciousness. Where is immortality? Where is self-enlightenment? Where is full of pleasure? This is the line to convert into the God from human life. Now we can change our position from human being to the God position, salvation position. Now I describe in Hindi language and Nepalese language अभिवादन परमात्मा को। परमात्मा को जानने के लिए 4 स्तर जानना होगा, 4 लेवल जानना होगा, 4 शिक्षा जानना होगा। ये संसार का सर्वोच्च जो धार्मिक शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र है, उससे हम लोग जान सकते हैं। 4 लेवल है, 4 स्तर है। इसको जानने से हम लोग मानव जीवन से परमात्मा में
अभी बदल सकते हैं। परमात्मा में बदलने के लिए ही हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं। ये नहीं कि फेसबुक देखने पर समय बिताएं, ऐसा नहीं। केवल फेसबुक देखकर समय बिताएं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट लेवल है परमात्मा का लेवल ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति में हम लोग फेसबुक देखकर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो वर्णन है सत्व स्तरीय वर्णन है, रज स्तरीय वर्णन है और तम स्तरीय वर्णन है। वहां तो संसार का ज्ञान है, मायावी ईश्वर का ज्ञान है। जहां तक हम लोग देखते रहेंगे, देखने वाला और जिसको हम लोग देखते हैं और क्रिया जो देखते रहते हैं, ये जो तीन नहीं छूटेगा फेसबुक देखने तक। ये तीन विभाग नहीं छूटेगा जब तक हम लोग फेसबुक देखते रहेंगे। दृश्य दर्शन और दृश्य दर्शन वाला दृष्टा, ये जो तीन विभाग है सत्व रजतम, ये फेसबुक तक अगर हम लोग सीमित रहेंगे तो चौथा नंबर का परमात्मा में हम कभी भी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। यद्यपि मनुष्य का ज्ञान, संसार का ज्ञान, मायावी ईश्वर का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान वो त्रिपुटी पूर्वक होगा, वो तीन विभाग पूर्वक होगा। विभाग रहित गुणारहित रहित नहीं हो सकता है, स्थिति नहीं हो सकता है वो जब तक देखेंगे। क्योंकि जब तक देखेंगे तो देखने वाला रहेगा, जिसको हम लोग देखेंगे वो रहेगा, और दिखाईपन जो क्रिया है वो रहेगा। तीन विभाग तो रहेगा ही रहेगा। जहां तक तीन विभाग रहेगा तब तक मुक्ति स्थिति कैसे होगा? मुक्ति स्थिति तो अनुभूति का अनुभव है, अनुभूति का वाक्य है, ब्राह्मी स्थिति का वाक्य है। वो तो मुक्ति का स्थिति के लिए तो विभाग रहित होना पड़ा, गुणातीत होना पड़ा। इसलिए यद्यपि फेसबुक से हम लोग बहुत सारे बात जान पाएंगे, जान सकेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन ब्राह्मी स्थिति के लिए, परमात्मा के स्थिति के लिए, मुक्ति मोक्ष के स्थिति के लिए, सुषुप्ति का अनुभव जैसा रहने के लिए ये तीन विभाग को हटाना होगा। केवल तीन विभाग नहीं, दो विभाग को भी हटाना होगा। भक्त और भगवान भाव जो द्वैत भाव है, इसको भी, भक्त भाव को भी हटाना पड़ेगा। बाकी रहेगा केवल एक भगवान जो ब्राह्मी स्थिति है, जो सुषुप्ति का अर्थात सुषुप्त का अनुभव है, वो स्थिति है। जब तक स्थिति बनाएंगे, जब स्थिति बनाएंगे तभी मुक्ति का साक्षात अनुभव होगा। इसलिए पहले तम ज्ञान, उसके बाद रज ज्ञान, उसके बाद सत्व ज्ञान और अंत में परमात्मा के ज्ञान जो गुणातीत है, सारा गुण के अतीत है। परमात्मा अभिवादन, परमात्मा जान्न को लागि चार स्तरलाई लिनुपर्छ। परमात्माको स्तर, सत्व स्तर, रजो स्तर, तम स्तर। अर्को भाषामा भन्नु पर्दा तम स्तर हो स्वप्न स्तर। स्वप्न स्तरमा तम स्तर र रज स्तर आउँछ।
रज स्वप्नमा तम, जाग्रतमा रज, सुषुप्तिमा परमात्माको ज्ञान, अनि सुषुप्तमा परमात्मामा स्थिति, ब्राह्मी स्थिति। यसरी स्वप्न, जाग्रत, सुषुप्ति, सुषुप्त, 4 स्थिति। स्वप्न मिथ्या हो, जाग्रत पनि स्वप्न बराबर भएको हुनाले मिथ्या हो। अनि जो सत्व स्तर जो हो, जो परमात्माको ज्ञान हो, भक्त र भगवान पूर्वकको जो ज्ञान हो, त्यसलाई पनि भक्त भावलाई परित्याग गरेर भगवानलाई मात्रै बाँकी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो परमात्माको स्थिति, त्यो हो सुषुप्त स्थिति, त्यो हो श्रीरामको स्थिति, श्रीकृष्णको स्थिति, भगवान शिवको स्थिति। त्यही स्थितिबाट यही क्रमले 4 प्रकारको शिक्षापूर्वक स्वप्नको ज्ञान, जाग्रतको ज्ञान, सुषुप्तिको ज्ञान र सुषुप्तको ज्ञान, 4 प्रकारको ज्ञानबाट हामीले आखिरी जो परमात्माको ज्ञान हो, जो चौथो जो अन्तिम हो, त्यहाँ गएर हाम्रो 3 गुण विलापन हुन्छ र बाँकी रहन्छ केवल परमात्मा मात्रै। भक्त्या मामपि जानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। श्रीमद् भगवत गीताको 18 अध्यायको 55 श्लोकमा यसरी भगवानमा विलय हो, सदा मुक्त स्थिति, मोक्ष स्थिति, परिपूर्णता, आनन्दे आनन्द। हरि ओम तत्सत्।